हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स विच इज़ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9। ओके, सो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स एंड व्हाट आर रेशनल नंबर्स। हम इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ओके, सो दिस इज़ माई नंबर लाइन फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 एंड नेगेटिव साइड एज वेल। ओके, सो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, सो इट कॉन्स्टिट्यूट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड गोज टू infinity, right? So these all are categorized as natural numbers starting from 1. Please keep in mind कि 0 को अभी हमने include नहीं करा है, right? So the numbers starting from 1 2 3 4 and goes to infinity, these all are my natural numbers. Okay, and then if I include 0 as well in natural numbers, then it automatically becomes whole numbers, right? So if I include 0, that means 0, the collection of 0 1 2 3 4 up to infinity. So these numbers are known as whole numbers, right? And then if we come to integers, so this segment 0 1 2 3 4 5 6 up to infinity, including negative side numbers as well, -1 -2 -3 -4 -5, right? So these whole up to negative infinity, so this together constitute integers, right? एक बार हम दोबारा से repeat कर लेते हैं. Numbers starting from 1 2 3 and goes to infinity, these are natural numbers. If I include 0 in that, so then that becomes whole numbers. And if I include negative side as well of the number line, then these all are integers. Correct? अब हम आते हैं कि रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं. सो नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स आर क्लियर. सो नाउ वी टॉक अबाउट रेशनल नंबर्स, राइट? सो एक नंबर लाइन है, राइट? इसके बीच में और भी नंबर्स होंगे. लेट्स से इन दोनों का अगर मैं मिड पॉइंट देखूँ, सो दैट वुड बी 1.5. करेक्ट? द मिड पॉइंट वुड बी 1.5, right? And 1.5 can be expressed as 15 by 10, right? Which is equivalent to 3 by 2, right? Okay, so 1.5 can be expressed as 3 by 2. Similarly मेरे पास और भी नंबर्स होंगे, 2 और 3 के बीच में एक और नंबर होगा, right? Which is 2.5. अगर इनके मिड पॉइंट की बात करूँ तो मैं 2.5, which can be expressed as 25 upon 10, right? Which is 5 by 2, correct? So this is another number on this number line, right? So these all are the numbers which can be represented in the form of P by Q, right? Here P is 3 and Q is 2, and in this example P is 5 and Q is 2, right? So these type of numbers we call them as rational numbers, correct? So rational numbers, अब क्या natural numbers rational numbers होते हैं या नहीं, देख लेते हैं एक बार. लेट्स से कि मेरे पास 2 is a natural number, right? So 2 can be represented as 2 divided by 1, right? Which is of the form P by Q, correct? So all natural numbers are my rational numbers, correct? Now can we say all whole numbers are rational numbers? Because ये तो हम देख ही चुके हैं natural numbers. So 0 को क्या हम represent कर सकते हैं in the form of P by Q? We can say 0 divided by 1, right? Which is also of the form P by Q, correct? So एक condition और है rational numbers की, Q should not be 0. So this is very important, right? Q should not be 0, and then those numbers are known as rational numbers. So इस form में भी अगर मैं whole numbers की बात करूँ, so these are also my rational numbers, right? Integers की अगर हम बात कर लें, so integers में भी इन numbers को, क्योंकि इन चारों को तो हम देख चुके हैं, all whole numbers are my rational numbers. So अगर हम integers की बात करें negative side की, so let's say -8, right? So -8 can also be represented as -8 divided by 1, which is also of the form P by Q, right? So this is also my rational number, correct? So integers, whole numbers, natural numbers, they all are my rational numbers, right? And the numbers in between these, like which can be expressed in the form of P by Q, let's say 1.5, which can be expressed as 3 by 2, 2.5, which can be expressed as 5 by 2, right? These are also my rational numbers, correct? अब I hope this is all clear to you. अब हम एक चीज़ और बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की. ओके, वी कॉल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. Okay, for example 1 by 2, right? This is my rational number, which is same as 2 by 4, which is same as 3 by 6,
right, which is same as 4 by 8. This is also equivalent to 5 by 10, right? Because I have a common factor here, 2 by 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 1 divided by 2 into 2, right? So they have a common factor 2 which will cancel out and this will be equivalent to 1 upon 2, right? So this is another common factor, right? So जब भी हम एक रेशनल नंबर को लिखते हैं p by q फॉर्म में, तो हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमें उसको सिंप्लीफाई करके इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए. They should not have any common factors except 1, right? जैसे यहाँ पे 2 था, तो अगर इसको मैं रिड्यूस करूँगा so this will become 1 by 2, right? 3 by 6 है, this can also be written as 3 into 1 divided by 3 into 2, right, where 3 is my common factor, so I can actually this will cancel out, right, and this will be equal to 1 by 2, right? So these all numbers, right, जिनको रिड्यूस करने पे हमें एक वो सेम नंबर ही मिलेगा, so these all are known as equivalent rational numbers, right? एंड हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जब भी मुझे कुछ इस फॉर्म का दिखे, हमें उसको रिड्यूस करके उसकी बेसिक फॉर्म में लाना है जहाँ पे p और q के मेरे पास कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, राइट, एक्सेप्ट 1. ओके, सो आई होप अभी सारे नंबर्स आपको क्लियर हैं. सो वी हैव डिस्कस नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स को हम p बाई q की फॉर्म में डिनोट करते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और हमेशा रेशनल नंबर को उसकी हमें एक लीनियर फॉर्म में लेके आना होता है जहाँ पे p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि हमने अपनी इस स्लाइड में डिस्कस करा है, राइट. सो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1. So it says, are the following statements true or false? Give reasons for your answer. So first it says, every whole number is a natural number. हम पीछे चलते हैं. सारे whole numbers क्या natural numbers होते हैं? So the answer is false because 0 is not a natural number. Correct? Now second statement says, every integer is a rational number. So सारे integers क्या rational numbers होते हैं? ये तो हमने देख ही लिया था, right? Which is true because every integer can be expressed in the form of p by q, right? हमने ये भी देखा था, जैसे हमने 8 को रिप्रेजेंट करा, -8 को -8/1, +2 को कैसे रिप्रेजेंट करा था, 2/1, right? So every integer is a rational number, so this statement is true. Now we move to the last statement which says every rational number is an integer. So every rational number क्या integers होते हैं, which is a false statement because हमने यहाँ पे देखा 3/2 is a rational number, right? But it is not an integer. Correct? Because 1.5 is not an integer. 2.5 is not an integer, right? So we are done with example number 1 and we move to example number 2. Okay. So example number 2 says, find 5 rational numbers between 1 and 2. 5 rational numbers between 1 and 2. ओके, सो 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, करेक्ट. सो इसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं. मेथड 1 देख लेते हैं सबसे पहले क्या है. एक तो तरीका ये है कि हम हमेशा इनके ना, जैसे जो भी नंबर्स दे रखे हैं नंबर लाइन पे, राइट, दिस इज 0 1 2, राइट. 1 और 2 के बीच के नंबर्स निकालने हैं, तो 1 और 2 का मिड पॉइंट क्या होगा, 1.5, और हम ये 1.5 रीच कैसे करेंगे. सो वी विल गो एंड से नंबर 1, एंड 1 से मैं डिनोट कर देता हूँ. नंबर 1 वुड बी 1 + 2 divided by 2, right? So 1 + 2 divided by 2 will give me 3/2, which is equivalent to 1.5, right? एक तरीका ये हो गया. अब दूसरा नंबर अगर मुझे निकालना है, so I will go and find a midpoint of 1 and 1.5 का जो बीच का नंबर होगा, right? इसको निकालेंगे. So ये कैसे आएगा? So number 2 will becomes, so this will, I will get 1 + 1.5 divided by 2, right? So this will be 2.5 divided by 2. अगर इसको हटाऊंगा मैं डेसिमल को, I will get a 10 here. And if I, because यहाँ पे मेरे पास 5 एक कॉमन फैक्टर है, राइट. अब ऊपर वाले 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5, नीचे मैं लिख सकता हूँ 5 × 2 × 2, right? So 5 is a common factor here, so I can remove these, right? And it will become 5/2 × 2 is 4, 5/4. So this will my second number, right? ये मेरे पास क्या आ जाएगा,
5/4, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं कि 1 और 5/4 के बीच का एक और थर्ड नंबर निकाल लेते हैं, राइट, नंबर 3। सो इसको हम कैसे करेंगे, 1 + 5/4 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो आई विल गेट 9/4 डिवाइडेड बाय 2। सो आई विल टेक LCM 4, सो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 5 विच इज़ 9, 9 डिवाइडेड बाय 4/2, सो दिस विल बी 9/8, राइट। तो दिस विल माई अनदर नंबर। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप निकाल सकते हैं। लेट्स से आप 1.5 और 2 के बीच नंबर निकाल लीजिए, विच विल बी 1.5 + 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। फिर जो नंबर है उसके बीच में और 2 के बीच में निकाल लीजिए। तो वैसे आप इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। 3 मैंने निकाले, आई वुड से आप 2 और ट्राई करिए अपने एंड पे, राइट। नाउ वी विल गो टू मेथड नंबर 2। हम दूसरा एक और क्या आसान तरीका है ये 5 नंबर्स निकालने का, राइट। तो जब भी क्वेश्चन में दे रखा है हमें 5 नंबर्स निकालने हैं, राइट, 5। सो मैं क्या करूँगा, 5 जब 5 दे रखे हैं तो 5 + 1 क्या होता है मेरे पास, 6 आया, राइट। सो आई विल गो 1 और 2 के बीच में निकालने थे, राइट, 1 और 2 के बीच में। सो मैं क्या करूँगा, क्योंकि 5 + 1 क्या हुआ, 6, राइट। तो मैं 6 से इस नंबर को डिवाइड करूँगा एंड 6 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। सिमिलरली 2 के लिए भी ऐसे ही करूँगा, तो 6 से डिवाइड कर देता हूँ और 6 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। सो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, और ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। सो दिस बिकम्स 6/6। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 12/6, राइट। ओके, सो इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे विच इज़ 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, राइट। सो ये पांचों नंबर्स क्या होंगे, दीज विल बी द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, करेक्ट। सो लेट्स से मुझे अगर 7 रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं या फिर 6 रेशनल नंबर निकालने होते, जैसे यहाँ 5 निकालने थे, अगर 6 निकालने होते तो मैं क्या करता, 1 और 2 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सो आई विल गो 6 + 1 इज 7, राइट। So I will divide by 7, multiply by 7. Here also I will multiply by 7 and divide by 7. तो ये हो जाएगा 7/7, ये हो जाएगा 14/7। So इसके बीच के जितने भी सारे नंबर्स होंगे विच इज़ 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 एंड 13/7। तो ये सारे नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ओके, सो दिस इज मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 3 और देख लेते हैं एक बार, राइट। मेथड नंबर 3 सेज कि जैसे मुझे 1 और 2 के बीच में नंबर्स निकालने हैं, राइट, 1 एंड 2 के बीच में, एंड आपको भी पता है 1 और 2 के बीच में 1.1 भी लाया करेगा, राइट, 1.2 भी लाया करता है, 1.3 भी लाया करेगा, 1.4 भी लाया करेगा एंड 1.5 भी लाया करेगा, राइट। सो इफ आई रिमूव दैट डेसिमल, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 10, इस डेसिमल को भी रिमूव करेंगे डिवाइडेड बाय 10, इसको भी रिमूव करते हैं, राइट। सो दीज ऑल नंबर्स, राइट, अगर हम इनको चाहें तो इनको रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 11/10, राइट, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। 12/10 में क्या है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 6 और नीचे मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, राइट। सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, सो नंबर बिकम्स 6/5, राइट। सो ये एक नंबर आ जाएगा, एक सोल्यूशन आ जाएगा। 13/10 का और कोई नहीं है मेरे पास कॉमन फैक्टर, राइट, एक्सेप्ट 1, सो 13/10 बिकम 13/10। 14/10 के 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 7, राइट, एंड नीचे मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो ये नंबर आ जाएगा मेरे पास 7/5, राइट। सिमिलरली 15/10 है, तो 15/10 को 15 को मैं लिखूँगा दिस इज़ 5 × 3, 10 को लिखूँगा मैं 5 × 2, राइट, 5 से 5 कैंसिल विच इज़ अ कॉमन फैक्टर और ये नंबर आ जाएगा 3/2, राइट। तो थर्ड मेथड ये आप इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं, राइट, बिकॉज आपको पता है 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे नंबर्स लाई करेंगे। एंड इफ आई रिमूव दैट डेसिमल तो नीचे मेरे पास 10 आ जाएगा। सो वन नंबर इज 11/10, सेकेंड नंबर इन द रिड्यूस्ड फॉर्म is 6/5, थर्ड नंबर इज 13/10, फोर्थ इज 7/5 एंड फिफ्थ नंबर इज 3/2, राइट। सो इन तीनों मेथड्स में से आप किसी भी मेथड से जाके ये निकाल सकते हैं, राइट, विच इज़ लाइक 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ओके, सो हमने ये तीनों चीज़ कर ली हैं। सो अब हम देखें तो मेरे पास 2 रेशनल नंबर्स के बीच में देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, राइट। जैसे हमने यहाँ पे देखा, राइट, सो इसका तो कोई एंड ही नहीं होगा, राइट। अब इन दोनों के बीच में आप एक नंबर निकालेंगे वो यहाँ पे आएगा, राइट, फिर इन दोनों के बीच का कोई नंबर निकालेंगे वो यहाँ पे आएगा। सो ऐसे ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, राइट। सो बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स
देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, करेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। सो summary is done for this first part of this chapter. So now we'll move to exercise 1.1. Okay, so this is exercise 1.1. राइट, इसलिए पिछले 2 पेजेस में अगर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आया, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे फिर। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 says is 0 a rational number? Question 1 says is 0 a rational number? 0 क्या रैशनल नंबर है? सो पहले हम ये देखेंगे इसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट। सो 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 बाय 1, ये हमने पहले भी देखा अपनी फर्स्ट स्लाइड में, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ रेशनल नंबर, करेक्ट, एंड p बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसको ऑलरेडी लिख दिया है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 which says find 6 rational numbers between 3 and 4. 6 rational numbers between 3 and 4. Okay, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सो अभी हमने 2 मेथड्स देखे थे, राइट, 3 मेथड्स देखे थे, तो मेथड 2 से देख लेते हैं इसको एक बार, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, दैट मीन्स अगर मैं 6 + 1 करूँगा, राइट, विच विल बिकम 7। सो 3 और 4 के बीच में निकालने थे, तो 3 4, सो 3 को मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 7, राइट, 4 को मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइड बाय 7. Okay, so this becomes 7 3 is 21 by 7 and this becomes 28 by 7, right. So बीच के सारे नंबर्स क्या होंगे, the numbers 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7, right. So ये सारे नंबर्स हो गए मेरे पास the numbers between rational numbers between 3 and 4. Okay, so these are all my numbers, rational numbers between 3 and 4, right. So which is the easiest way. अब हम आगे चलते हैं, उसने बोला 5 rational numbers between, so next question says 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5, right. इसको कौन से मेथड से करें, इसको जैसे पिछला एग्जांपल हमने मेथड 2 से देख लिया, इसको हम मेथड 3 से देख लेते हैं, राइट। मेथड 3 से मैं चाहूँगा आप इसको मेथड 2 से भी एक बार ट्राई करें, हम इसको मेथड 3 से देख लेते हैं। सो 3 by 5 इज 0.6, करेक्ट, एंड 4 by 5 इज 0.8, करेक्ट। सो 0.6 और 0.8 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 0.61 होगा, 0.62 होगा, राइट, 0.63 है, एंड सो ऑन, 0.64, 0.65, 0.66, राइट। हमें कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे, 1 2 3 4 5, लेट्स से हम ये पहले के 5 ले लेते हैं, राइट। अब नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दीज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, राइट। सो दिस इज 0.61, अगर मैं डेसिमल रिमूव करता हूँ तो 61 अपॉन 100, करेक्ट। नाउ दिस डेसिमल को रिमूव करूँगा तो 62 अपॉन 100, इसको मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, विच इज़ 2 इंटू 31 upon 2 into 50, right. 2 is a common factor here, I can cancel these out, so my number becomes 31 upon 50, right. Now 63 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.63 को मैं लिख सकता हूँ 63 upon 100, right. इसका कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। 0.64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 64 upon 100, राइट। इसमें कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं मेरे को। ऊपर वाले नंबर को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 4, नीचे मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 4, राइट। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देन दिस नंबर बिकम 16 अपॉन 25, राइट, एंड द लास्ट नंबर इज 0.65, तो वी कैन राइट इट एज 65 अपॉन 100, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 5 इंटू 13,
divided by this is 5 into 20, right? So we can cancel these two common factors. So this number is 13 upon 20, right? So मेरे पास 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5 are, right? First is this one, second is this one, third, fourth and fifth, right? अब चाहें तो इसको वैसे भी ट्राई कर सकते हैं दूसरे मेथड से, लाइक मेथड 1 एंड मेथड 2 जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, मेथड 1 मेथड 2, राइट? हमने इसको मेथड 3 से अप्रोच करा बिकॉज हमने पिछले को मेथड 2 से अप्रोच करा था, करेक्ट? अब हम आगे चलते हैं. सो वी मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन विच सेज, क्वेश्चन नंबर 4, which says state whether the following statements are true or false, give reasons for your answers, right? So I think ये हम already ही discuss कर चुके हैं. First question is every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. क्या ये whole number होता है? सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं. एक बार हम अपनी प्रीवियस स्लाइड्स पे चलते हैं, आप खुद ही देख के बता सकते हैं वहाँ पे, राइट? सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स होते हैं, विच इज़ ट्रू, करेक्ट? बिकॉज 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो होल नंबर्स में भी आते हैं, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दिस इज ट्रू. सेकेंड इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर्स होते हैं, विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज -1, -2, -3 these are not part of whole numbers, right? So every integer, because ये वाला जो section है इधर का, these are not part of whole numbers, so this statement is false. Now third statement says every rational number is a whole number. So every rational number क्या whole number होता है? This statement is also false because हमने देखा था कि 3/2 is a rational number but it is not a whole number because whole numbers are like 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 3/2 1.5 को represent कर रहा है, which is a rational number but not a whole number, right? So every rational number is not a whole numbers. And this sums up our exercise 1.1 and हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम आगे के exercises करेंगे and we will discuss about irrational numbers there. So thank you and please like, share and subscribe. Thank you.